Okay, let us start the session. We have discussed about degree radian, है ना? Degree and radian. What is degree? Degree is what? If one cycle is divided into 360 divisions, then each division is equals to what? Each division is equals to 1 degree. And if 1 degree is divided into 60 divisions, then each division will be 1 minute. And if 1 minute is divided into 60 times, then it will be 1 division will be equal to 1 second. If one cycle is divided into 360 equal parts, then each part will be equal to of 1 degree. Same like in one cycle, you know very well. If there is this is the angle theta, this is arc, and this is radius. Theta is equals to arc upon radius. If arc is equal to radius, means it is r, it is also r, it is 1 radian. Means when the arc is equal to the radius, then the angle subtended on the center of the circle is equal to 1 radian. One cycle means theta is equals to arc. In one cycle, arc will be equals to 2 pi r upon r. Arc is 2 pi r, and upon r it will be equals to 2 pi radian. Means in one cycle there is 2 pi radian. In one cycle there is 360 degree. Okay, and you know very well that 360 degree is equals to 2 pi radian. RAD means radian. Okay, 1 degree is equals to 2 pi upon 360 radian. You can solve and you will get the answer. This was all about degree and radian and relation between degree and radian. Okay, now we will discuss about the parallax method. Okay, we have discussed, but now today also we will discuss in short. Okay, now what is basically parallax method? Parallax method is a indirect method of measuring large distance. Parallax method is the method to measure the large distance, and it is indirect method of measurement. Okay, because in actual we are not comparing with the standard measurement. Okay, that's why it is called indirect method of measurement. Now we will see that, let us suppose this is the ground, and one star or some nearby object is present here, and the distance of the star or the planet or the nearby object is we have to measure. Okay, first observe from here. It is a position 1, P1, and one star is present just upside the observer. Okay, and this planet makes an angle θ1. Okay, θ1. Now change the position and observe from here, and the star will be at the same position, this upward, directly upward. Okay, directly upward, and here the angle will be changed. Now it is, let us suppose, θ2.
Okay, now you know very well. This is also theta 2, this is also theta 1, and the whole angle theta is equals to what? Theta 1 plus theta 2. Okay, because the distance of this object is greater as compared to the distance between them. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दो ऑब्जर्विंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी कुछ इस तरह से बनेगा ना। ये सर्कल का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा, ये दोनों, इन दोनों की जो पोजीशन है बहुत पास में है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, लेकिन इनके इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके कंपैरिजन में स्टार की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। कंपैरिजन आप समझते होगे, है ना। तो क्या देखेंगे इसमें हम कि because these 2 points are very close as compared to the distance of the object, this object, let us suppose this is D and the distance is small d, or you can also take B, है ना। The distance, shortest distance between these two position is called basis. ये क्या कहलाता है? हमारा बेसिस कहलाता है ना। और आप जानते हो सिंपली थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। आर्क कितनी हो जाएगी? आर्क इज द डिस्टेंस, मीन्स बी लिख लो या डी लिख लो, कोई भी लिख लो, और ये जो हमको डिस्टेंस मेजर करना है कैपिटल डी, है ना। ये वाली डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सरफेस या कोई भी जहां से हमको मेजर करना है और उस प्लेनेट की डिस्टेंस होती तो ये डिस्टेंस चाहिए, लेकिन चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इसलिए एंगल बहुत छोटा होगा, इसलिए ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी, अप्रोक्सीमेटली। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस लो या ये वाले डिस्टेंस को बात बराबर है, ये रेडियस हो जाएगी थीटा इक्वल्स टू डी। डी हमको कैलकुलेट करना है तो थीटा अपॉन डी, एंड डिस्टेंस ऑफ द टू पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन हमको पता होगी, और डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन हमको पता होगी, और एंगल भी हम मेजर कर लेंगे। ये दोनों, ये ध्यान रखना, एंगल मस्ट बी इन रेडियन, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। तो इन दोनों का अगर हमको पता चल जाएगा, इन दोनों की वैल्यू हमको अगर पता चल जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय पुटिंग दीज टू वैल्यूज। आई थिंक इट इज क्लियर। और इसी मेथड को हम बोलते हैं पैरेलक्स मेथड। क्योंकि ये पहले पढ़ा चुका बहुत डिटेल से, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, है ना। आपने होमवर्क भी किया होगा, और होमवर्क भी दिया था ना। होमवर्क आपने किया हो, होमवर्क में कोई प्रॉब्लम आई है किसी को किसी भी एक्सरसाइज में? बता दो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मुझे पता है। वैसे एक दो क्वेश्चन तो मैं करा दिया था, एक क्वेश्चन करा दिया था, दो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया, दो या तीन क्वेश्चन की हो गई, दो क्वेश्चन लग रहे हैं, दो क्वेश्चन होमवर्क में दिया, तो बहुत इजी था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 20 पे ही आप देखोगे, आपको लिखा होगा, बहुत इजी है, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हम एवरेज डिस्टेंस या नॉर्मल डिस्टेंस तो हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्केल दे दिया जाए आपको, उससे आपको अगर मेजर करना हो, कोई स्टिक दे दी जाए आपको, उसकी लेंथ को मेजर करना हो, या अपने खुद की हाइट को अगर मेजर करना हो, या फिर डोर है, डोर की साइज को मेजर करना हो, या बॉटल की साइज को मेजर करना हो, या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो आपके आसपास में, उसको अगर मेजर करना हो, तो आप नॉर्मली आप स्केल या कोई स्टैंडर्ड स्केल से आप मेजर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप नॉर्मल स्केल से मेजर नहीं कर सकते। और बहुत ही स्मॉल, जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर मॉलिक्यूल की साइज को अगर हमको मेजर करना होगा, तो हम जो ऑर्डिनरी स्केल आपके पास जो होती है उससे आप मेजर नहीं कर सकते। या फिर आप पेज की थिकनेस को, पेज जो आप बुक और कॉपी यूज करते हैं उसके जो पेजेस हैं,
पेज की थिकनेस को आप मेजर नहीं कर सकते हो बहुत ईजिली, है ना। इसलिए हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने का भी एक अलग टेक्निक लेके आते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसको हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी कहते हैं ना। साइज ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, देखना एक एक वर्ड की मीनिंग को आप समझना। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल? साइज ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ गए बात? अगर आपसे साइज की बात करें, मॉलिक्यूल की साइज, तो मॉलिक्यूल के साइज का मतलब रेडियस नहीं होता ना, रेडियस नहीं होता या वॉल्यूम नहीं होता। साइज का मतलब होता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल का मतलब, है ना। या साइज, किसी साइज की बात की जाए तो अगर वो सर्कुलर होगा या स्फेरिकल होगा तो उसको हम डायमीटर की बात करेंगे। हम पढ़ते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछते भी रहो, ठीक है। तो देखना पेज नंबर एनसीईआरटी होगी सबके पास, आई थिंक मैं बोला हूँ एनसीईआरटी लेके चलना, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेसिक है। तो इसमें आप देखोगे पेज नंबर 20 पे ही आपका लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की साइज, मतलब कोई मॉलिक्यूल होगा उसकी साइज को हम मेजर कर सकते हैं। इस मेथड से हम सारे मॉलिक्यूल की साइज मेजर नहीं कर सकते, है ना। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, है ना। बहुत इसमें उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। लेकिन इसके पहले वाला जो पैरेलक्स मेथड है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो अपना माइक ऑफ करो। चलो देखो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होगी, आपको मैं पढ़ने को नहीं बोलूंगा, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझाता हूँ, है ना। आपको आप अपनी बुक रख दो, पहले मैं समझाता हूँ, पहले मेरा काम, ठीक है। देखो क्या किया गया कि इसमें एक स्पेशल टाइप का एसिड लिया गया, इसको हम ऑयलिक एसिड कहते हैं। आप बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा ऑयलिक एसिड कहा जाता है। ऑयलिक एसिड की साइज को हमको मेजर करना है, ऑयलिक एसिड की साइज को हमको मेजर करना है ना। पहले पूरी स्टोरी समझना, पूरी स्टोरी अगर आप समझे रहोगे ना तो बहुत अच्छे से समझना। पहले कहानी समझो, मैं क्या बता, स्टोरी क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि कोई एसिड है, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर इसके मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया जाए, कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया जाए, है ना, और अगर अरेंज करने के बाद ध्यान रखना, इस तरह से अरेंज हो जाए, इसके अंदर ये वो है, क्या नाम है कि बॉक्स है, क्यूबॉइड बॉक्स है, क्यूबॉइड है, इसके अंदर अरेंज कर दिया जाए, इसके अंदर एकदम फिक्स कर दिया जाए, इसमें फिल अप कर दिया जाए इसको। ऑयलिक एसिड को इसको फिल अप पैकअप कर दिया जाए। मुझे बताना कि अगर मुझे इस बॉक्स की लेंथ, इस बॉक्स की ब्रेथ और इस बॉक्स की हाइट कह लो या विड्थ कह लो, जो भी कह लो, अगर हमको पता हो तो हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द एसिड इज LBH। क्या तक समझ आया कि अगर अप्रोक्सीमेटली, ध्यान रखना क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस भी होगा थोड़ा सा, है ना, स्पेस भी थोड़ा सा होगा, तो इसलिए मैं बोला हूं कि वॉल्यूम इज नॉट इक्वल, वॉल्यूम ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, बट अप्रोक्सीमेटली। क्लियर?
ध्यान रखना, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली की बात करूँ, ठीक है? यस। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स, ध्यान रखना आगे मैं बता रहा हूँ, ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स कुछ इस तरह से बनाया गया, ऐसा ऐसा बनाया गया कि इस पे सिर्फ सिर्फ क्या है, इस तरह से मॉलिक्यूल रखे गए। मतलब इस तरह से रखने का मतलब क्या होगा कि एक के ऊपर कोई दूसरा ना हो, एक के ऊपर कोई दूसरा ना हो। मतलब क्या होगा, मतलब अगर हम छोटे छोटे बॉल्स ले लें, बॉल, छोटे छोटे बॉल ले लें और उसको ग्राउंड पे, फ्लोर पे इस तरह से रखें कि एक के ऊपर ना हो, एक दूसरे से आप टच में हो, एकदम कंजस्टेड हो, लेकिन एक के ऊपर दूसरा ना, एक बॉल जो है दूसरे बॉल के ऊपर ना हो, इस तरह से ना हो। यानी कि वो क्या बनाएगा, वो एक लेयर बनाएगा, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर बनाएगा, ऐसे इस तरह से सिंगल लेयर, एक के ऊपर, ये बॉक्स में तो एक के ऊपर एक हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बनाया जाए, इस तरह से बनाया जाए, ध्यान रखना, इस तरह से अगर बनाया जाए सिंगल लेयर, जिसको हम बोलते हैं यूनी लेयर, क्या बोलते हैं, यूनी लेयर, यूनी मतलब सिंगल, तो यूनी लेयर बनाए इस तरह से, इस तरह से बॉक्स की तरह नहीं फिलअप करें। अगर यूनी लेयर बनाते हैं, ध्यान रखना, अगर मैं कहूं कि इस यूनी लेयर का मतलब क्या हुआ, जो जो ये मॉलिक्यूल होगा उसकी जो साइज होगी, यानी उसकी जो हाइट होगी h, और इसकी लेंथ होगी कुछ l, और इसकी कुछ विड्थ होगी इसको b, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, क्योंकि इसकी जो हाइट होगी, यानी बॉक्स की जो हाइट थी, अब यहाँ पे वो मॉलिक्यूल की साइज हो जाएगी, यस और नो? तो अगर मैं इसकी साइज को हाइट बोलूं, इसको साइज को हाइट बोलूं, या इसकी साइज को हम थिकनेस बोल दें, थिकनेस या थिकनेस ऑफ द लेयर बोल दें, तो बताओ क्या यही हाइट यानी मॉलिक्यूल की साइज कैलकुलेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ आप, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना, क्या हो जाना चाहिए, राइट डाउन फास्ट। एल बी टी या एल बी एच, है ना, एल बी टी और एल बी एच, नहीं समझ में आया क्या? काफी लोग यार एक्टिव रहोगे तब ना समझ में आएगा। क्या सब लोग लिखे ना, एक तरफ से सब लोग लिखे, सब लोग लिखे, देखिए कौन कौन एक्टिव है, सो नहीं रहे हो ना? ठीक है, ठीक 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 ठीक, एल बी एच लिखो या एल बी टी लिखो, क्योंकि एच और टी आपस में बराबर है। गुड गुड गुड, ये समझते रहना। अभी देखो, अभी कॉन्सेप्ट पे नहीं आया, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे स्टोरी बता रहे हैं, ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया हमारा कि ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लेयर, हमने सिंगल लेयर बनाया, यूनी लेयर बनाया, है ना, सिंगल लेयर जिसको कहा था यूनी लेयर। तो यूनी लेयर हमने अगर बनाया, तो इसी की जो, इसकी जो लेयर की जो थिकनेस होगी, बेसिकली दैट इज द हाइट ऑफ द बॉक्स, और हाइट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, या जो हमको कैलकुलेट करना है बेसिकली साइज ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाए। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो गया, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एल बी, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस या हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी टी। गुड, चलो इसको यहीं तक रहने देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, दूसरी हम बात करते हैं, वो ये है कि अगर ऑयलिक एसिड लिया जाए, ऑयलिक एसिड ज्यादा विस्कस होगा, विस्कस समझते हो, विस्कस, ऑयलिक एसिड ज्यादा विस्कस होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कस? नो, देखो हर चीज ना, फिजिक्स में मुझे ऐसा लगता है
कि 80% चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, हम हर चीज का बस वो टर्म नहीं समझ में आते है ना, या उससे हम रिलेट नहीं कर पाते। हाँ, स्टिकी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, खुशी पांडे, वेरी गुड। स्टिकी, गाढ़ा, कहते हैं ना, बहुत ही कहते हैं कि गाढ़ापन जिसके अंदर हो, अपनी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, स्टिकी कह सकते हैं, या फिर हम उसको विस्कस कह सकते हैं, गाढ़ापन जिसको कहते हैं। तो ये क्या है ना कि जो ये क्या नाम है कि जो ऑयलिक एसिड होता है ये बहुत गाढ़ा होता है ना, बहुत गाढ़ा होता है। तो क्या करते हैं, अगर ये बहुत स्टिकी है या बहुत क्या नाम है विस्कस है, और अगर ये विस्कस है, अगर हम इसको कहते हैं कि कोई एक प्लेट ले ले, प्लेट, राउंड प्लेट ले ले, और जब इसमें हम ड्रॉप ड्रॉप करके या अगर हम ऑयलिक एसिड इस पे लगाते हैं, रखते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, ऑयलिक एसिड क्या करेगा, वो यूनिलेयर नहीं बना पाएगा, है ना। और हमको साइज ऑफ द मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या चाहिए, यूनिलेयर, सिंगल लेयर, और उसी थिकनेस को हम क्या बोल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन स्टिकी होने की वजह से अगर हम उसको कहीं कहीं रखते हैं, किसी सरफेस पे रखते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, ये बहुत स्टिकी या बहुत ज्यादा विस्कस होने की वजह से प्रॉब्लम इसलिए आती है कि इट विल नॉट मेक अ यूनिलेयर। लेकिन यूनिलेयर तो होना चाहिए, पहले तो हम कैलकुलेट कर पाए। तो क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, बता दो, कि बहुत ज्यादा स्टिकी है, तो क्या करना चाहिए, अगर तुमको दे दिया जाए क्या करोगे, फटाफट मुझे आंसर बताओ। अगर ये बहुत ज्यादा स्टिकी है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है या विस्कस है, तो व्हाट यू विल डू, डाइल्यूट करोगे, ठीक है। अब डाइल्यूट कैसे करते हैं, सिर्फ वाटर ही ऐड किया जाता है डाइल्यूट करने के लिए, ऐड वाटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, वाटर ऐड कर देंगे, गुड 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 गुड, चलो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, वाटर ऐड कर दोगे, ठीक है, वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में वाटर नहीं दिया हुआ, हमारे बुक में दिया हुआ है एल्कोहल, है ना। वाटर को मिक्स करने से क्या होगा, है ना, वाटर को मिक्स करने से क्या होगा कि वाटर वेपराइज होगा, वाटर वेपराइज होगा, लेकिन उसके वेपराइज होने के साथ साथ हमारा ऑयलिक एसिड भी वेपराइज हो सकता है, या फिर वाटर वेपराइज होने में बहुत टाइम लगे, है ना। एल्कोहल ज्यादा जल्दी वेपराइज होता है ना, एल्कोहल जो है वो वेपराइजेशन एल्कोहल का बहुत तेजी से होता है, पता है। तो इसमें एल्कोहल मिलाते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें एल्कोहल मिलाते हैं, वाटर में मिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। वाटर क्यों नहीं मिलाया गया, क्योंकि वो इसके साथ क्या नाम है कि ऑयलिक एसिड भी वेपरेट हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि बहुत टाइम लगाता है वाटर को वेपरेट करने में, एल्कोहल बहुत जल्दी वेपरेट हो जाता है। आपने फील भी किया होगा, आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना में आपने सैनिटाइजर यूज किया होगा, है ना। जो कहते हैं ना कि जो लोकल लोकल क्वालिटी का वो सैनिटाइजर होता है ना, उसको लगा लो ना, थोड़ी देर तक आराम से, देर तक वो भीगा रहता है, बेटर रहता है। लेकिन जो अच्छे क्वालिटी का सैनिटाइजर होता है, जैसे ही इस पे लगाओगे, विद इन 10 सेकेंड्स क्या होगा, प्राइस हो जाता है, खत्म, लगेगा ही नहीं कि लगाया भी था, है ना। तो ये चीज है, एल्कोहल इसमें मिलाया, इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, एल्कोहल में कैसे मिलाएंगे एल्कोहल, देखो, आ, क्या करेंगे इसमें कि हम पहले ऑयलिक एसिड लेंगे जिसका वी वॉल्यूम होगा, इसको हम मिक्सअप करेंगे, इसको बना देंगे 20 टाइम्स, 20 टाइम्स अल्कोहल मिलाने के बाद 20 टाइम्स हो गया, उसमें से हम क्या करेंगे, 1 लीटर निकाल लेंगे। तो अब इसमें बताओ ऑयलिक एसिड कितना हो जाएगा, V/20, मतलब क्या हुआ कि हमने हमने 1 लीटर 1 लीटर हमने ऑयलिक एसिड लिया, इसमें हमने मिक्सअप कर दिया 19 लीटर, यानी उसको 20 लीटर बना दिया अल्कोहल मिला के। तो अब जब उसमें से हम पूरे मिक्सर सॉल्यूशन में से अब हम 1 लीटर निकालेंगे, तो उसमें ऑयलिक एसिड कम होगा, है ना, कितना टाइम्स होगा, V/20 टाइम्स, V/20 टाइम्स, मतलब उसमें ऑयलिक एसिड बहुत कम होता है। यानी कि अगर ऑयलिक एसिड हमने 100 लिया, 100 मॉलिक्यूल लिया ऑयलिक एसिड का, तो
तो अब कितना बचेगा, ऑयलिक एसिड का हमने 100 मॉलिक्यूल लिया है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसमें एल्कोहल भी मिलाया था 19 टाइम्स, तो उसको 20 टाइम्स कर दिया था। फिर उसमें से हमने पूरे में से क्या निकाला, हमने 1 लीटर निकाला मिक्स सोल्यूशन में से। तो आपको क्या मिला, आपको क्या मिला कि जो 100 मॉलिक्यूल आपने लिया था, अब आपको 100 नहीं मिलेगा, बल्कि 100 का 20 टाइम्स हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 100/25 हो जाएगा, है ना। 5 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। फिर क्या किया गया, इसमें फिर से 20 टाइम्स इसको बना दिया गया, 20 टाइम्स सोल्यूशन बना दिया गया। फिर वही काम किया गया, है ना। इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, 20 टाइम मिला दिया गया। फिर उसके बाद हमने इसको इसमें से लिया, तो V/20 तो था ही पहले से, अब 20 और हो जाएगा, यानी बहुत कम हो रहा है ना। मतलब क्या हुआ, V/20 इंटू 20, या V/400 भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो V/20 इंटू 20 वॉल्यूम, यानी ऑयलिक एसिड का इतना वॉल्यूम होगा, ये कंसंट्रेशन कहते हैं, है ना। कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है ना, ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन डाउन हुआ, एक बार 20 टाइम्स डाउन हुआ, फिर 20 टाइम्स और डाउन हो गया, यानी कि 1/400 टाइम्स कंसंट्रेशन उसका हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैं इन पूरे सोल्यूशन में से, अब इस सोल्यूशन में से मैं 1 ड्रॉप लेता हूं, तो ईच ड्रॉप विल हैव ऑयलिक एसिड दिस, मतलब कि अगर मैं कहूंगा कि n ड्रॉप लिया हमने, तो हर ड्रॉप में कितना है, V/20 इंटू 20, है ना। अब कह रहा हूं कि अगर हमने n ड्रॉप लिया, तो एक नंबर ऑफ ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय नंबर वॉल्यूम, हम कह सकते हैं कि कितना उसमें ऑयलिक एसिड आएगा, उसमें इतना ऑयलिक एसिड आएगा। और उसको हम क्या करेंगे, किसी फ्लैट सरफेस पे, इस सोल्यूशन को फ्लैट सरफेस पे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको ड्रॉपिंग करेंगे। तो ये फैल जाएगा, यूनिलेयर बना लेगा यहाँ पे, ये बना रहेगा सर्कुलर में, सर्कुलर एरिया बना लेगा। लेट अस सपोज इसका एरिया हमारा कितना आ रहा है, ए आ रहा है, और इसे टी आ रही है। एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो थिकनेस हमको कैलकुलेट करनी है, वो कितनी हो जाएगी, n इंटू वी अपॉन 20 इंटू 20 इंटू ए इधर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इस जो वॉल्यूम, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉइन की तरह बना होगा, कॉइन की तरह, तो उसकी कुछ थिकनेस होगी, कुछ इसका एरिया भी होगा। एन ड्रॉप हमने ड्रॉप किया था, इसलिए ऑयलिक एसिड इसमें कितनी आएगी, एन मल्टीप्लाइड बाई वी अपॉन 20 इंटू 20, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू थिकनेस। तो टोटल ऑयलिक एसिड का जो वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया विल बी इक्वल टू NV अपॉन 20 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ओके। तो आप अगर मेजरमेंट, अगर एरिया अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर आएगा, है ना। वॉल्यूम अगर आप, वॉल्यूम जो ड्रॉप, एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है, आप सेंटीमीटर क्यूब में लोगे, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो वैसे सारी चीजें सेंटीमीटर में यूज करते हैं, इसलिए आंसर जो आएगा, थिकनेस जो आएगी, वो सेंटीमीटर में आ जाएगी आपकी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। नो, होना नहीं चाहिए वैसे।
नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देख लो इसमें, आप इसको हेडिंग डाल लो, राइट डाउन द हेडिंग। मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे वैसे वैसे लिखना। राइट डाउन द हेडिंग, राइट डाउन द हेडिंग, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, एस्टिमेशन ऑफ, एस्टिमेशन समझते हो ना सब लोग? एस्टिमेशन का मतलब, एस्टिमेशन मतलब होता है अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना। अंदाजा का मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। एस्टिमेशन का मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, है ना? तो ये अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट है, इट इज नॉट एक्यूरेट। तो लिखोगे एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल में आप सिर्फ फार्मूला लिख लो, ये फार्मूला यहाँ से लिखोगे आप, बुक में आपके दिया हुआ है, लिखो इसमें। मैं बता रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन, इस तरह से लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखोगे, ऐसे NV सेंटीमीटर क्यूब, NV सेंटीमीटर क्यूब। उसके नीचे लिखोगे अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड, OL, अमाउंट ऑफ OLEIC, ऑयलिक, ऑलिक एसिड जो भी बोलो, ऑलिक एसिड, amount of oleic acid in this solution, in this solution, amount of oleic acid in this solution, ये ऐसा लिखोगे, ये वाला यहां से आता है, देखो n n v अपॉन 20 इंटू 20, n v अपॉन 20 इंटू 20, n v अपॉन 20 इंटू 20, ठीक है ना? उसके बाद ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद यहां से ये 80 इक्वल टू दिस एंड दिस, पूरा लिख लोगे फॉर्मूला। वो इजी है, सब कुछ है नहीं। इसको आप चाहोगे तो पढ़ लोगे, तो ये एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी से, आपको समझ में आ जाएगा। देखना एक चीज और है इसमें, एक पॉइंट और है इसमें, कि जब हम इसको, इस ड्रॉप्स को हम जब ड्रॉप करते हैं किसी सरफेस पे, तो ये यूनिलेयर नहीं बना पाता, बहुत इजी, बहुत इजीली ये यूनिलेयर नहीं बना पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बहुत ही स्मूथ सरफेस चाहिए, बहुत ही स्मूथ। स्मूथ का मतलब, समझ रहे? स्मूथ का मतलब, देखो मैं आपको बता दूं, सॉफ्ट नहीं, स्मूथ का मतलब सॉफ्ट नहीं होता है ना। देखो स्मूथ का मतलब, जैसे ये माइका है ना, ये माइका बहुत ही स्मूथ लग रहा है। ये जो प्लास्टर होता है ना, सीमेंट से जो प्लास्टर करते हैं, बहुत ही स्मूथ लगता है हमको, है ना? टाइल्स है, बहुत ही स्मूथ लगती है हमको, है ना? इस तरह से जो भी चीजें स्मूथ, हमको स्मूथ लग रही है, ऐसा नहीं कि वो स्मूथ हो, है ना? स्मूथ कैसे, कि कोई मटेरियल ऐसा हो सकता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसकी साइज बड़ी, है ना? उसकी साइज बड़ी, अगर उसकी साइज बड़ी है, और जो जिस सरफेस को हम रब कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरा एक हाथ, इसकी मॉलिक्यूल की साइज बड़ी है फॉर एग्जाम्पल, दूसरा हाथ अगर इसके मॉलिक्यूल की साइज भी उसी के कंपेरेबल है ना, कंपेरेबल है या बहुत या उससे बड़ी है, तो ये स्मूथ लगेगा। लेकिन अगर ऊपर वाले जो रब कर रहा है इसकी साइज बहुत छोटी, बहुत छोटी, तो ये इसके लिए स्मूथ नहीं।
समझ में आई बात? अगर एक मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा है, एक एक मटेरियल का मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा है और दूसरे मटेरियल का मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, तो क्या होगा कि ये सरफेस इसके लिए स्मूथ नहीं होगा, है ना? अगर हम कोई सरफेस लेते हैं, ग्लास लेते हैं, या फिर हम अगर प्लास्टर लेते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल की साइज काफी बड़ी होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि लाइकोपोड सॉरी ये क्या नाम है कि हमारा जो ऑयलिक एसिड है इसकी मॉलिक्यूल की साइज काफी छोटी होती है, जिससे हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि स्मूथ सरफेस नहीं आता है। लेकिन अगर वाटर के मॉलिक्यूल को देखा जाए, तो वाटर का मॉलिक्यूल काफी छोटा होता है, वाटर का मॉलिक्यूल काफी छोटा होता है, इसलिए वाटर का जो सरफेस वो स्मूथ सरफेस माना जाए एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑयलिक एसिड। समझ लेना, हर चीज रिलेटिव है, हर चीज रिलेटिव है, कौन चीज स्मूथ है कौन स्मूथ नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रबिंग सरफेसेस। जो सरफेस आपस में रब जो सरफेस आपस में रब कर रहे हैं, जो सरफेस आपस में रब कर रहे हैं उनकी साइज पे डिपेंड करता है कि जो हमारा क्या नाम है कि जो सरफेस है वो स्मूथ है या नहीं। समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए इस जो जो हमारा स्प्रेडिंग ऑफ द सॉल्यूशन, दैट विल बी डन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। क्लियर हो रही बात? बहुत कहानी है इसके पीछे, है ना? बुक पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझा लूंगा बहुत आसानी से। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि हम इसको किसी भी सरफेस पे स्प्रेड नहीं कर सकते, हमको ऐसा सरफेस चाहिए दैट शुड बी वेरी स्मूथ। लेकिन क्या हुआ कि हमने जब वाटर को देखा तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है उनकी साइज काफी छोटी थी, जिससे हमको पता चला कि ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल के लिए वाटर का जो सरफेस है दैट इज स्मूथ। अब प्रॉब्लम आई कि जब हम उस वाटर के सरफेस पे ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सारा का सारा जो ऑयलिक एसिड है वो नीचे चला जाता है पानी के अंदर, फिर स्प्रेड कहाँ से हो पाएगा, है ना? स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया कैसे? प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया कि आप एक काम करो, क्या करो, आप एक काम करो, वाटर के सरफेस पे टेंशन लेके आओ, टेंशन, यानी उसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा हार्ड करने की कोशिश करो, टेंशन लाओ। तो वाटर का सरफेस को टेंशनाइज करने के लिए या उसको हार्ड करने के लिए एक पाउडर स्प्रिंकल किया गया, दैट इज लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम, आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा, लाइकोपोडियम एक पाउडर है, इसको स्मूथ लिखा होगा कहीं, देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा। हाँ, पेज नंबर 20 के सेकेंड कॉलम है जो, यानी कि पेज नंबर 20 पे ही दो कॉलम है, जो आपके राइट वाला कॉलम है उसके ऊपर आप देखोगे लिखा हुआ वन, एकदम ऊपर अप साइड 1/20 × 20, उसके नीचे लिखा होगा नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन अ लार्ज थ्रो, वी पुट 1 drop ऑफ दिस सोल्यूशन इन द वाटर। ठीक है ना? तो ये सब काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल है और ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, लाइकोपोडियम पाउडर उस पर स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका सरफेस थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, आपको उस पे अपना एक्सपेरिमेंट करना आपको इजी हो जाएगा। आपका आपका ये होमवर्क रहेगा, आप इसको पढ़ना है आपको। देखो, इसके बाद आता है हमारा रेंज ऑफ लेंथ, नेक्स्ट पेज पे आपका पेज नंबर 20, लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ। रेंज ऑफ लेंथ का मतलब क्या हुआ कि हमको क्या चीज मेजरमेंट करना है, कौन सा क्या हमको मेजर करना है, वो डिपेंड करता है ना? जैसे मैं साइज ऑफ रेंज ऑफ लेंथ का मतलब क्या होता है उसको बताता हूँ। रेंज का मतलब होता है कि किस किस क्वांटिटी में कह सकते हो कि किस क्वांटिटी में हमको मेजर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप गए वहां कपड़े की दुकान पे, है ना, आपको परचेज करना हो, क्लॉथ परचेज करना हो मीटर वाइज, आपको
आपको लेटर सपोज आपको 2 मीटर लेना, 2 मीटर, तो आप उसको बोलोगे कि 2 मीटर दे दो, है ना। या फिर उसको आप ये भी बोल सकते हो कि 0.02 किलोमीटर दे दो, बोल सकते हो। अरे 2 मीटर है, 2 मीटर को क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.02, यही आएगा ना। 2 मीटर बोलो या 2/1000, यानी कि 0.002, 0.002 किलोमीटर। तो कौन सही है, मीटर वाला या किलोमीटर वाला? मीटर वाला है। तो 0.002 किलोमीटर कहना ज्यादा सही नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे 2 मीटर। लेकिन अगर आपको आपको अगर कोई छोटी सी चीज, छोटी सी स्टिक हो, छोटी सी स्टिक है, छोटा सा कोई हो, तो उसको आप किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में? आप मीटर में भी यूज नहीं करोगे। लेकिन आपको दो सिटीज के बीच के डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन द मऊ एंड आजमगढ़, अगर आपको मेजर करना तो आप क्या करोगे, आप किलोमीटर का यूज करोगे, मिलीमीटर का यूज नहीं करोगे या सेंटीमीटर का यूज नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कन्वर्ट नहीं किया जाता, कन्वर्ट किया जा सकता है बिल्कुल ना। डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर, नो प्रॉब्लम। बट रिलेवेंट क्या है, रिलेवेंट आपका किलोमीटर होना चाहिए, या अगर साइज ज्यादा हो तो उसमें, ठीक है। लेकिन इससे बड़ी अगर हम आते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, है ना, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, तो हम किसमें यूज कर सकते हैं, हम या तो हम और भी यूनिट है इसमें जिसे हम पारसेक भी कहते हैं, जिसको हम लाइट ईयर भी कहते हैं। लाइट ईयर है, पारसेक है, सोलर यूनिट है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, उसको हम मेजर करते हैं। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ मास। मास को कैसे मेजर करते हैं ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ये होमवर्क रहेगा थोड़ा सा। रेंज ऑफ मासेस, इसको भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मेजरमेंट ऑफ टाइम, यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग। एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर जो है, इसको मैं कल से पढ़ा दूंगा, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा, पीछे जो भी हमने पढ़ा इस चैप्टर 2 में, जो भी हमने पढ़ा, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब आपके एग्जाम में, फॉर्म एग्जाम जो आपके स्कूल में एग्जाम होगा, इसमें तो दिया जा सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसमें एक चीज आपको बस थोड़ा याद रखना है, डिग्री एंड रेडियन, थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इसका डायरेक्टली यूज नहीं आएगा, तो डायरेक्टली उसको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसका यूज आता है। लेकिन यहाँ से एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ना। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, बाकी चीजें थ्योरेटिकल थोड़ा सा, बाकी कल से मैं इसको एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर को भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके आगे बात करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।